Hi, this is Payal Dev. You're watching me on Mirchi Plus. Hi, this is Siddharth Shukla from Mirchi Plus, and today I have with me a beautiful voice, Payal Dev, who is giving, some amazing numbers one after the other. A very warm welcome to Mirchi Plus, Payal. Hi, how are you? I'm good. How are you? Thank you. Thank you so much for having me here. So, your new song, Kam To Nahi, it's already creating a lot of buzz. It's even in the trending list of YouTube and, on many streaming platforms. So I want to start. You somewhere mentioned on your social media, this one is especially very close to your heart. So, Yeah. like, what is it that it's there in this song that you feel that it's very close to you? The melody actually. As you know, I always focus on my melody. Whenever I'm creating something, I like 100% I focus in melody. The melody should be beautiful. In this also, you see, it's a different vibe song. Rather than my other songs, those are different Yeah. feel, and this is a complete different feel. What I wanted to do, and this is the song what I composed after To Anna actually. It was that time Okay. song. So of Okay. course this feel na I really love it. And this song is really really close to my heart. Everything you see, the lyrics is so unique and Yeah. so Yeah. good. And I have a very good relationship with Kunal Bhai also, Kunal Verma. Right. Right. केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हमारी. वो समझते हैं मेरे कॉम्पोजिशंस को एंड वो वैसा लिखते हैं. सो विच इज अ ग्रेट थिंग दैट यू हैव विथ यू. सो इससे बेटर आई डोंट थिंक कुछ हो सकता. आदित्य देव, माय हस्बैंड एंड द म्यूजिक प्रोड्यूसर, Right. ही नोज व्हाट अ सॉन्ग नीड्स, लाइक द म्यूजिक प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए. सो यस, आई हैव अ वेरी ग्रेट टीम एंड आई एम सो ग्लैड आई हैव इट. Uh-huh. So in this song, like, how does it usually happen? So you create the, basic rough melody first, and then आप बोलते हैं lyrics लिखने के लिए, or the other way around? Around like both are fine for me actually, I will say, because sometimes I compose and I send it to the lyricist, like Kunal Hmm. Verma हो या मनोज भाई हो, मनोज मुंतशिर हो या फिर रश्मि विराग Hmm. जी हो, Hmm. सबको मैं भेज देती हूँ. देन दे राइट इट. एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सुपर मुखड़ा आया है, भेजता हूँ देखो ये कैसा है. मैंने Hmm. कहा ऑब्वियसली आपने लिखा होगा तो अच्छा ही होगा. तो दे सेंड मी द Hmm. मुखड़ा लिरिक्स एंड मैं उसके ऊपर भी कंपोज कर सकती हूँ. इट्स नथिंग लाइक कि मुझे लिरिक्स के ऊपर ही करना है या मुझे पहले कंपोज ही करना है. डिपेंड्स एक्चुअली. Right. Like you said, you have a great rapport with your lyrics writer, Kunal, and obviously other people that you work with. मुझको ये पूछना है कि, जानना भी है एक्चुअली कि बहुत कम ऐसा होता है लाइक योर सॉन्ग कुछ तो नहीं, इट हैज ब्यूटीफुल लिरिक्स, बट या बहुत आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड अग्री, दोज हु आर वाचिंग अस, बहुत कम ऐसा हो रहा है दैट आजकल हमको मीनिंगफुल लिरिक्स बन रहे हैं ऑफ कोर्स देयर आर, या हो रहा है, बट ऑब्वियसली द परसेंटेज इज लेस एज कंपेयर्ड टू या you या know the earlier times. So like why, what do you think would be the reason? Is it because of social media कि लोग social media specific music बना रहे हैं, या फिर like what's your take on it? तो ये तो है. आप देखो, जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड आया है ना, स्पेशली जो शॉर्ट वीडियोस वाले, तब ना लोगों में आई फील कि थोड़ा पेशेंस कम है पूरा म्यूजिक सुनने के लिए. लोगों को वो 30 सेकेंड्स ही है आपके पास, जिसमें आपको दिखाना है कि ये मेरा गाना है, और उसमें से अगर आपका गाना पिक हो जाता है तो इट इज डूइंग रियली गुड. तो ये भी है. Yeah, एंड yeah. ये भी एक फ्रेज है. ये एक टाइम चल रहा है शॉर्ट वीडियोस का, आगे भी चलने वाला ऑफ कोर्स, कि लोगों को देखना पसंद है. सोशल मीडिया इज लाइक बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी आते हैं इसमें. वी लिसन टू सम ग्रेट वॉइसेस, जो लोग कवर्स भी Right. गाते हैं. बहुत अच्छे सिंगर्स भी हमें दिखते हैं यहाँ पे. तो ऑफ कोर्स थोड़ा, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट तो है अभी. डिफिकल्ट इन द सेंस कि गाना बहुत लंबा नहीं कर सकते, Yeah, आपको yeah, थोड़ा शॉर्ट ही patience. रखना पड़ता है. सो या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, I will say, and everyone is trying their best to please them, of course.
Right, Payal, you also make independent music और आप फिल्मों में भी गाते हो. What do you enjoy more, films या independent music? Because I've heard many artists saying that independent music में you get more freedom. हाँ Because कोई लंबा स्टोरी लाइन नहीं है. Obviously स्टोरी लाइन हाँ. उसमें भी होता है because there's a video going. So what do you enjoy more in person? See, I like both actually. Both have their own thing. आप फिल्म कर रहे हो तो it's a different thing. आप सिंगल कर रहे हो या इंडिपेंडेंट कर रहे हो, that's also different. That will give you a different feel. Like recently मैंने किसी का भाई किसी की जान के लिए एक गाना किया सलमान भाई के लिए. So it's Yeah, a huge thing for me. Of course, for composing for Salman Khan is a great opportunity, it's a and I huge. think I'm the Yeah, first female composer जिसने सलमान भाई के लिए गाया कंपोज भी किया गाया भी ऑफ कोर्स. सो right. मेरे को दोनों ही आई लव बोथ. हाँ मतलब मुझे इंडिपेंडेंट भी इतना ही पसंद है, फिल्म के गाने भी इतने ही पसंद है. आप स्पिरिचुअल देखो तो स्पिरिचुअल भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. इवन सम तो वर्क रियली नाइस. मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे घर राम आए हैं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं. तो आई लव वर्किंग लाइक कुछ भी काम हो, म्यूजिक है तो मुझे पसंद है. On that note, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं is one of my personal favorites. I can personally say that it's एक ऐसा एक emotional भी हो जाता है, but at the same time we feel happy also. So that's one of my personal favorites. Uh, थैंक यू सो मच. um, to- या so also like we're talking about music and social media, it also brings ये लोगों को राइट भी देता है अपना ओपिनियन रखने का. सो वाइल देयर इज अ पॉजिटिव साइड, इसका पॉजिटिव साइड भी है कि आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि वंस द सॉन्ग इज आउट ये क्या होने वाला है, बिकॉज कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं. शुरू हो जाते बट हैं, देयर राइट. इज अ बैड साइड ऑफ इट ऑल्सो, या लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड, राइट? सो के बॉयकॉट भी कुछ सॉन्ग्स होना शुरू होते हैं, हाँ कुछ हाँ मूवीज हाँ होना शुरू होती है. हाँ What do you think, like, is it necessary boycott and all? Because अगर नहीं पसंद आ रहा है तो we can not listen to it, you know. हाँ. छोड़ राइट सकते हैं. So राइट. what's your take on it? क्या कहूँ अभी इस मैटर में, पता नहीं लोगों का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, लोग कौन से सिचुएशन में है. जो लोग कह रहे हैं तो पहले उनके सर्कमस्टांसेस को जानना जरूरी है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं. मतलब पता नहीं, कभी कभार यू आर नॉट श्योर कि क्यों हो रहा है चीजें, लाइक कभी बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाता है या कभी बहुत अच्छे डायरेक्शन में नहीं जाता. तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन आवर ऑडियंस कि उनको कब क्या पसंद आता है. सो इट्स वेरी Right, अनप्रिडिक्टेबल. बट वी right, वी right, ऑलमोस्ट वी लाइक वी आर ऑलमोस्ट ट्राइंग कि हर चीज हम लोग जो भी करें वो अच्छा ही ट्राई करें, जो भी कर रहे हैं नई चीज है. right. And you are actually churning out some amazing numbers, like I said about मेरी माँ के बराबर and other या numbers, like very nice. आपने बाजीराव मस्तानी में भी you गाने. sung, right? या Yeah, that was really nice. And that brings me to my next point. I want to talk about it आपसे कि ओरिजिनल सॉन्ग्स ऑब्वियसली दे आर अमेजिंग, बट कुछ रीमेक सॉन्ग्स भी ऑब्वियसली बन रहे हैं जो हम्म. चार्ट बस्टर्स हो जाते हैं सॉन्ग्स, राइट एंड राइट. बट स्टिल सम पीपल आर सेइंग के सम नेटिजन से कि ये नहीं बनना चाहिए, देयर अगेंस्ट इट. सो आर यू ओके विद रीमेक्स एंड ऑल? लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? या आई एम एब्सोल्युटली ओके. मैंने भी सावन में लग गई का रीमेक किया था फॉर द मूवी गिनी विद सनी. इट्स ओके इफ पीपल आर लाइकिंग इट, इट्स फाइन. और जो उनको पसंद नहीं आता है, द सेम थिंग व्हाट आई टोल्ड यू. कुछ गानों को लोग पुराने वर्जन में ही ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ वर्जन्स को नए रूप में पसंद करते हैं. बट मुझे जहां तक पता है जितने भी रीमेक्स बनते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग रियली वेल. और जाके आगे ब्लॉकबस्टर होती है तो वो रिकॉल वैल्यू होता है एक तो. लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम डूइंग रिमिक्सेस और रिक्रिएशन. या एज फार एज ऑडियंस को पसंद आ रहा है, बिकॉज उन्हीं के लिए यस, हम लोग बना रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Right. Lastly, before I move on to my next segment, lastly, I want to ask you about, the reality shows. या While हमको, जो aspiring singers होते हैं, aspiring musicians होते हैं, हम लोग पहले, लोग पहले देखते थे कि कोई प्लेटफॉर्म है या कैसे, अभी सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म आ गया, हम शोकेस कर सकते हैं. बेसिकली ऑल ऑफ अस आर इंडिपेंडेंट इन दैट सेंस कि हम कर सकते हैं. What's your take on reality shows in that matter? Because they are also kind of providing stage to newcomers, but again, there's a flip side to it.
That's the other category, I will say. Playback is a different category. Reality show is a different category. प्लेबैक वॉइसेस ना बहुत डिफरेंट होते हैं, एज यू सी, लाइक जितने भी हमारे Hmm. प्लेबैक सिंगर्स हैं, चाहे वो जुबिन हो, अरिजीत सिंह हो, विशाल मिश्रा हो, या स्टिबन हो, सबकी आवाज अलग है। प्लेबैक वॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये एक डिफरेंट। और रियलिटी शो में आप देखो, बहुत बहुत तैयार, बहुत मंझे हुए सिंगर भी आते हैं, पर मे भी उनको प्लेबैक के लिए ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, इट्स ऑल अबाउट वर्क। दे आर लविंग देयर वर्क। वो स्टेज पे गाना पसंद करते हैं, बहुत लोगों को लाइव भी गाना पसंद है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है रियलिटी शो के थ्रू। बहुत नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बहुत अच्छे सिंगर्स भी निकल के आते हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि सबको काम मिल रहा है, लोगों लोगों तक आवाज पहुंचाने का मौका मिल रहा है। सेम विद सोशल मीडिया से कितने अच्छे सिंगर्स आते हैं जो रियलिटी शो में भी नहीं आते, बट सोशल मीडिया पे कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। Right. That's actually good because we get to, showcase our talent and किसी पे depend नहीं होना पड़ता है for राइट। that matter. Right, I get it. Okay, we'll quickly move on to our next segment. This is Know Your Artist, in which मैं आपसे एक questions पूछने वाला हूँ, just so that आपके fans जो हमारे जो भी listeners हैं, and they want to know more about you. I'm gonna ask you quick questions. ठीक है? ओके So ओके। we'll start. पहला, how do you deal with creative block? आप creative block से कैसे deal करते हैं? क्रिएटिव ब्लॉक इन द सेंस, लाइक हाउ इन द कैन सेंस जैसे ऐसा हो रहा था, जैसे राइटर्स के लिए आता है कि अभी थॉट्स नहीं आ रहे, वर्ड्स नहीं आ रहे, हाँ सडनली हाँ। बंद हो जाता है। हम्म। सिमिलरली म्यूजिशियंस के लिए होता है कि ट्यून्स हाँ, आती राइट आती है, राइट, मेलोडीज आती है, गॉट इट। सडनली बंद हो जाता है। या समझ गई, हाँ। तो उसमें कुछ भी नहीं, जिस टाइम पे योर माइंड इज नॉट वर्किंग, व्हेन यू आर सो कंफ्यूज, तो उस टाइम पे आपको काम थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। एंड इंस्टेड ऑफ दैट आपको कुछ अदर चीजों पे फोकस करना चाहिए जो आपको पसंद हो। या तो वो फैमिली टाइम हो सकता है, या तो आप कोई टीवी शोज देखना चाहते हो, या जो भी हो, अदर एप्स में नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो या अमेजोन प्राइम, जो भी है आप वो देखना चाहते हो, डिपेंड करता है। थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए खुद को। फिर एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद वो चीजें वापस से आप में जनरेट होने लगती है, तब आप काम कंटिन्यू कर सकते हो। बट फोर्स नहीं करना चाहिए कभी भी कि नहीं आज तो मैं करके ही सोऊंगी ये काम, ये नहीं होता है। राइट। नाइस। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हो वो कुछ तो सीख रहे होंगे, इंक्लूडिंग माई थैंक यू। सेल्फ। नेक्स्ट इज आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपने गाया हुआ हो या फिर कंपोज किया हो। सी बहुत सारे हैं मेरे, सारे गाने मुझे, मतलब आई पर्सनली लाइक इट बिकॉज मैं बहुत गाती हूँ, रिलीज होने से पहले तक भी गाती हूँ कि इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। सो तुम ही आना आई विल से, बिकॉज तुम ही आना इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, माई फर्स्ट ओके, सॉन्ग जिससे मेरे मुझे एक नई पहचान मिली है। सो आई विल डेफिनेटली तुम ही आना। that was really nice. So, next is your favorite reel song. जो reels पे आज तक गाने बन रहे हैं, कोई ऐसा है जैसे you are seeing कि बहुत ज्यादा reels आजकल बहुत ज्यादा चल या रही है? Have you ever या noticed कौन सा है वो? सी, मैंने रिसेंट एक रील बनाया था, वो कुछ है, भोला बाबा दे दे नोट छापन की मशीन, सबकी बजा दूं बीन। वो बहुत फनी था एंड बहुत अच्छा था। बीच बीच में ये भी हो रहा है कि जब वो रील आता है ना, भोला बाबा, मैंने कहा भाई मशीन खत्म हो गई, बाद में आना। जब वो रील्स आता है तो वो कमेंट्स आप खुद भी करते हो, भाई बहुत हो गया यार, कितने मशीन रखेंगे, भोले बाबा पे भी रहम करो टाइप वो है। तो इट्स वेरी फनी। या मजा आता है। हाँ। Okay, so your all-time favorite singer, ऑल टाइम फेवरेट सिंगर लता जी। male or female दोनों? अच्छा, लता मंगेशकर एंड कुमार शानू जी। Yeah, nice. आपका म्यूजिक में कोई इंस्पिरेशन जिससे कि हम बड़े होते हैं कि इसे देखकर लगता है, या फिर इन किसी को सुनकर या देखकर हमको समझ में आता है कि हमको म्यूजिशियन बनना है, सो हु वाज दैट फॉर यू? लता मंगेशकर, ऑफ कोर्स, लता मंगेशकर, आशा जी, ये लोग ही है। इनको देख वाओ के वाओ। इंस्पिरेशन मिला है हमें। राइट, योर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? अह, नदीम श्रवण जी बहुत फेवरेट रहे मेरे। नाइस। योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ द ईयर? सॉन्ग ऑफ द ईयर विल बी दिस ईयर, और रिसेंटली कोई भी सुनाओ। इट कैन बी
गेंदा फूल। ओह नाइस। एंड लास्टली कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको यू फील के मुझे अपनी आवाज देनी है, उस एक्ट्रेस के लिए मुझे गाना है। कटरीना कैफ। Oh, yeah, I think it should sound nice. Yeah, या nice, nice. Amazing, amazing. So that was it. Thank you so much for joining Mirchi Plus Pile, and it was amazing talking to you, and all the very best for this song and many more to come. थैंक यू सिद्धार्थ, इट्स रियली नाइस मीटिंग यू। Same here. Thank you. बाय बाय। Bye.